حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا، سب لوگ احترام کرتے ہیں حضرت عباس، وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہچانتا ہے۔ یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلا نال جنیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے۔ سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے۔ بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما۔ حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی، اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو۔ یہ ہم بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام پہ، اور میں نے کہا میاں آپ کو کوئی اتنی پریشانی ہے جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی حضرت عباس کہتے میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں، تو اگر
अम्मा के कहने पर बच्चे अब्बा जी से झगड़ा कर लेते हैं या अब्बा जी के कदम चूम लेते हैं, तो अम्मा के कहने पर बच्चे दरूद व सलाम नहीं पढ़ेंगे? वो सहाबा के या अहले बैत के या महबूब अलैहिस्सलाम की शान में कमी करने वाले बेअदब से बचेंगे नहीं? क्यों नहीं ये चीजें हम सिखाते? हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बच्चों को घर में बिठा के नबी पाक की अजमतें सुना रहा था। हुजूर गली से गुजर रहे थे तो महबूब भी खड़े हो गए। हुजूर सुनने लगे। फरमाते मेरे नसीब देखो, पता नहीं कब से हुजूर सुन रहे थे। जब बातें मुकम्मल हो गई ना, जब उस दिन का वो सबक, उस दिन की वो महफिल तकमील को पहुंची, तो महबूब ने दस्तक दी। कहते हुजूर ने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो हैरान ही रह गया, अल्लाह की सारी रहमतें मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फरमाते रश्क करने लगा मैं अपने मुकद्दर पर। महबूब अंदर तशरीफ लाए, बैठ गए, तो महबूब ने सुन भी लिया, फिर भी पूछा चाचा क्या कर रहे थे? पूछ लिया, लेकिन तस्दीक के लिए पूछा क्या कर रहे थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्ला, ये बाकी बच्चे कह रहे थे मुस्तफा की कोई बात सुनाए, तो महबूबा आपके ही तज़किरे कर रहा था। हजरत अब्बास कहते हैं पहले पूछा फिर तस्दीक फरमाई। कहने लगे जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मैं भी दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहा था, मैं सुन रहा था दरवाजे पे खड़े होकर, सही कह रहे। अब हुजूर ने रिजल्ट का ऐलान किया, तेरा बच्चा कैसे उनके पास चला गया जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं? तूने उन्हें हुजूर के इल्म की बात बताई नहीं? तेरा बच्चा वहां जाके कैसे बैठ गया जो कहते हैं कि माज़ अल्लाह ताला हुजूर को तो अपना नहीं पता आखिरी वक्त कैसा हो? कहां कैसे चला गया तेरा बच्चा उनके पास जो सहाबाए किराम के बारे में कमजोर जुमला बोलता, जो अहले बैत नबुव्वत के बारे में कमजोर, कैसे चला गया? अगर तूने घर में बैठ के महफिल की होती, उन्हें खुद सिखाया होता, खुद कैसे बिगड़ सकते थे बच्चे? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू पानी किसको देता रहा अगर तेरा अपना बाग ही खुश्क रह गया? महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास से कहा मैंने सुन लिया है और मैं इतना खुश हुआ हूं, इतना खुश हुआ हूं, सुनो अब तुम्हें मिलेगा क्या? हुजूर क्या मिलेगा? कहते मेरे सारे खानदान की तवज्जो हुजूर की जानिब हो गई। तो महबूब ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, फरमाया तुमने ये काम करके ना अपने बच्चों को मेरी अजमत सिखा के, अपने बच्चों को मेरे गीत सुना के, फरमाया तुमने अपने और अपने खानदान के हक में मेरी सिफारिश को हलाल कर लिया है। फरमाया अब सुबह कयामत में तुम सब की सिफारिश करा के तुम्हें जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। बच्चों को रात को बिठाया कर। ये हमारे बच्चों के अकीदे क्यों खराब होते हैं? बदमज़हबों के हत्थे क्यों चढ़ते हैं? तो जो है मेरी बात पर, बच्चों के अकायद उस वक्त खराब होते हैं जब हम उन्हें अकीदा सिखाते ही नहीं। मौलवी साहब की बात तो वो उतनी सुनेगा जितनी हम सुनते हैं, क्योंकि हमने बताया होता है कि ये मौलवी साहब हैं, इनको हम 10,000 रुपया माहाना तनख्वाह देते हैं। तो बच्चा भी समझता है कि क्योंकि ये 10,000 लेता है तो 1 घंटा इसने जुमे वाले दिन बात करनी है। क्या उसका वो असर लेगा? क्या असर लेगा जब हमने तारुफ इस तरह कराया है? ये नात खा हमने बुलाया हुआ है, किस लिए? ये 15,000 रुपया लेगा। तो बच्चा कहते हैं इसकी तो ड्यूटी है, 15,000 पूरा करना है इसने। ये खतीब साहब आए हैं, क्या करने आए? कहते 25,000 एडवांस लिया। तो बच्चा उसका क्या असर लेगा? वो कहेगा इसका तो काम है, फुला आदमी बड़े अच्छे शेर पढ़ रहा है। तो बच्चा कहता पढ़ने नहीं, उसके ऊपर पैसे नहीं फेंके जा रहे, साथ साथ ही पढ़ने नहीं, इसीलिए तो पढ़ रहा है। मेरे भाई बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं और जहां आप उसको ये सिखाते हैं ना कि बेटे पढ़ जाओगे तो पैसे कमाओगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना पढ़ जाओगे तो बहुत ऊंचे उड़ोगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना ये हमारा घर बड़ा करीबी है और ये हमारा दुश्मन है, तो बच्चा 5 साल का भी उस घर में नहीं घुसता। अपनी जात के बारे में बच्चे को सारा कुछ सिखाते हो, पहला काम उसे ये करो कि उसे मेरे नबी की मोहब्बत सिखाओ, उसे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाओ। उसे रात को जब यहाँ लिटाते हो ना, यहाँ कंधे पे, उसे कहते हो मैंने तेरे लिए बड़ी मेहनत की, मैं बड़ी कोशिश करता रहा, मैं तेरे लिए बड़ी दूर तक सफर करके आया। उसे कहा करो बेटे मैंने कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए जो कुछ भी किया है तेरे रसूल ने किया है, तेरे महबूब ने तेरी आखिरत के लिए बड़ा कुछ किया।
अपने बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाएं, उनकी घुटी में डालें ये बात। कैसे बिगड़ गया बच्चा, कैसे गैरों आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। एक बन जो रही है हमारे मुल्क में, और कुछ बना नहीं बना, हम सारे कैमरा मैन तो बाड़ी गए। वो पहले ना इस तरह होता था कि कोई किसी बुजुर्ग से मिलता था तो कहता था जनाब दुआ करना। अब कोई किसी बुजुर्ग से मिलता है तो कहता इधर देखा जरा फोटो लेनी है। वो खुदा के बंदो, दुआ तो रह ही गई। पहले बुजुर्गों से मिलते तो कहते हजरत जी मेरे लिए, अब कहते हजरत जी जरा इमामा सीधा कर दो, फोटो सही आ जाए। छोड़े कोई फर्ज कफाया तो है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से उलमा ने इजाजत दी। और पता नहीं कैसे कैसे हम कॉल ढूंढ के लाए, जुजियात उमूम बलवा है, इब्तिला है, क्या क्या हमें जुजियात ढूंढने पड़े और कौम ने उसे फर्ज कफाया ही बना लिया है। आगे पीछे बात बढ़ती नहीं, खुदारा मेहरबानी। मैं एक जगह पे बैठा था कुछ अर्सा पहले, 4 तस्वीरें लगी हुई थी कमरे में। मैंने कहा कि ये भाई उतार दो, मैंने नमाज पढ़नी, कहते पीर साहब की है फोटो। मैंने कि जब हुक्म आ गया कि जहाँ तस्वीर है वहां नमाज जायज नहीं, तो मुरीद साहब की हो या पीर साहब की हो, बात तो एक ही है। तो पीर साहब को नहीं पता फोटो नहीं लगवानी चाहिए। वैसे भी फोटो दीवारों पे नहीं पीरों की रखनी चाहिए, पीरों की तस्वीर दिल में रखनी चाहिए। और हमने दिल में सजा रखी है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। इतना शौक, इतना शौक। मुझसे कोई शख्स पूछता है ना कभी कि फ्लैक्स पे फोटो, तो मैं कहता हूँ छोड़ो यार, पहले फ्लैक्स पे लगती है फिर माज़अल्लाह जमीन पे गिरती है, क्या जरूरत है। और ये जो अलकाबात लिखते हैं ना बड़े बड़े इश्तिहारों पे, कौम को तो पता ही नहीं कि ये क्या कहा जा रहा है। कौम को सादा नाम बड़ी मुश्किल से याद होता है, लिहाजा लंबे चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए। जो अम्मा अब्बा ने नाम रखा उतना ही काफी है, बाकी कोई कितना दीन का काम कर रहा है ये सुबह कयामत खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस दुआ फरमाए अल्लाह यहाँ भी इज्जत दे और वहां भी अल्लाह पर्देदारी अता फरमाए। मेरी बात पर जरूर गौर करें और याद रखें, अपने बच्चों को बिठाएं। वो देखें ना, हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा, मेरी बात पे तवज्जो करनी आप, ये बात आपने याद रखनी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जी क्या वजह हुई कि आप मुसलमान हो गए, क्या सबब बना आपके कलमा पढ़ने का। हर आदमी के साथ कोई ना कोई बात हुई, किसी ने कुरान पाक सुना, किसी ने कुछ सुना, कोई ना कोई वाकया है, पस मंजर है। तो अम्मा जी आप कैसे मुसलमान हुई। जनाब आयशा सिद्दीका कहने लगी मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी वाकये की, इसलिए कि मेरे अब्बा जी जनाब अबू बकर सिद्दीक जितनी देर घर बैठे रहते थे मोहम्मद अरबी की नात ही पढ़ते रहते थे, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करते रहते थे। मुझे जरूरत पेश, तो किस तरह तेरे बच्चे को जरूरत पेश आती है कि वो कहीं से जाके सीखे, तू किधर है। 3 बातों की ड्यूटी अब्बा जी और अम्मा जी की है, नबी पाक ने लगाई है। हुजूर ने फरमाया 3 काम करो, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुजूर कौन सी। फरमाया एक उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, एक उन्हें अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरा माँ बाप की ड्यूटी है। फरमाया अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर तब बनेगा जब हमारे बच्चे रसूल पाक से जुड़ जाएंगे, जब हमारे बच्चे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम बनेंगे, जब उन्हें हुजूर की सुन्नत का शऊर आए। हमारी अम्मा तो थैंक यू सिखाना फख्र समझती है, बेटे थैंक यू बोलो। ओ बीबी ये ठीक है, ये जब स्कूल जाएगा तो बोलेगा, हम दिकियानूस नहीं है, हम कायल हैं जदीद तालीम के, लेकिन थैंक यू का सवाब कोई नहीं। सवाब जज़ाकल्लाहु खैरा का है, इसका अजर है। जज़ाकल्लाहु, इसका अजर है। ये हदीस बुखारी में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अपने मोहसिन को जज़ाकल्लाहु खैरा कहा उसने उसका पूरा शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये जुमले तूने क्यों नहीं सिखाए, ये तेरे बच्चे की जुबान पे क्यों नहीं आया, इन फिक्रों को तूने क्यों अपने घर में राइज नहीं किया। बच्चों को दीन सिखाएं, नबी पाक की गुलामी सिखाएं, उन्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। हमारे मुल्क में जो अच्छी खुशामद करे उसे अच्छी वजारत मिलती है, अच्छी वजारत उसे देते हैं। जो जरा सही बदतमीज भी हो और सही वकालत करने वाला उसे वजारत सही देते हैं। बड़ा अजीब उसका मिजाज था। ये चलाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं, चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जजाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने हुन अल्लाह खैर करे जेड़ा नमाज पढ़ाए हो मौलवी, तो जेड़ा टल पाए हो पीर,
ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਨਹਾਏ ਛੋਟਾ ਪੀਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਨਹਾਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੀਰ। कहते बाबा पहुंचे है, कड़े छड़े जो पहन लिए। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे, अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े घट पाए। क्या तमाशा है, कौम जिधर दिल करता है निकल जाती है। याद रखें, वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते, उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज। हाँ हाँ, ये बात सच्ची है तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई एमएनए एमपी ये जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख ले बात। हम बड़ी उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो, इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, नहीं यहां बनी होती है। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा किया कि बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है। बड़े लोग तो तुम पता है ना, जेड़ा इलेक्शन लड़ता होता है राती जित के सौंदा है, वो फाते होता है, हर रोज जीतता है। पता उसी दिन चलता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस। हर बंदा नहीं कहता असी वैसे उंज ना उंज असी हिमायत फराडियां दी करन डे हैं, तो फिर छड़ दे क्यों नहीं है? उंज धोखेबाज ही, इन्हें कराया उन्हें कख नहीं, तो फिर छोड़ दो जान, तुम ही छोड़ दो। ये बंदा बात सही कर रहा है, बंदा वैसे ये बात सही कर रहा है, पर अजय हालात नहीं ठीक है दे वाले बंदे ठीक ने। पर क्या तमाशा है, कब तक ऐसा रहेगा कि कब तक ये बात? बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन। बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह रहा अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। दूसरे पे मशकीजा, वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, और हर मसलब की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना, और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, इसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा।